السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا ایمان، تقوی اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ مددات کے ٹاپک جو کہ ہم کر رہے ہیں، اور مددات کے ٹاپکس میں ہم نے جو ہے وہ 3 قسم کی مددات دیکھ لی ہیں الحمدللہ کہ تینوں قسم کی مددات میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مد بنے گی اور کس طرح سے کتنی مقدار ہوگی، اس مطابق ہم پڑھ لیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اس کا تھوڑا سا پہلے ہم ریکیپ کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ ان کی پریکٹس کریں گے، یعنی مختلف قسم کی مدات ہوں گی، ہم ان میں سے پہچانیں گے کہاں پر مد واجب متصل ہے، کہاں پر مد جائز منفصل ہے اور کہاں پر مد لازم ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم انشاءاللہ اس میں تمام چیزوں کا انالیسس کریں گے، یعنی تطبیق کریں گے انشاءاللہ۔ تو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں کہ مد واجب متصل کیا ہوتی ہے۔ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ ایک ہی کلمے میں ہو، جڑا ہوا ہو، تو مد واجب متصل ہوتی ہے، اس کو 4 کاؤنٹس پڑھنا واجب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مد جائز منفصل کب ہوتی ہے؟ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہو، تو یہ مد جائز منفصل ہوتی ہے، اور اس کو 4 حرکات پڑھنا بھی جائز ہے اور 2 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پھر مد لازم کیا ہوتی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید یا ساکن حرف ہو تو وہ مد لازم ہوتی ہے، اور اس کو ہم 6 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اس کی ہم نے 2 الگ نام ہم نے دیکھ لیے تھے کہ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید ہو تو وہ مد لازم کلمی مثقل ہوتی ہے، اور اگر حروف مدہ کے بعد ساکن حرف ہو تو وہ مد لازم کلمی مخفف ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام قواعد آپ نے انشاءاللہ یاد کر لینے ہیں، انہی کی پہچان سے ہم جو ہے وہ مدات کی پہچان کریں گے، یہی ان کے قاعدے ہیں، اور انہی سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم نے اتنی مقدار ان مدات کو پڑھنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ یہاں انڈیا اور پاکستان کے مصحف میں مد واجب متصل کی شکل اور مد لازم کی شکل سیم ہوتی ہے، جبکہ مد جائز منفصل کی شکل لہر کی شکل میں بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اب یہ مد واجب متصل اور مد لازم کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر ہم مدات سے ہی ان کو پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو مدات ہیں یہ کون سی ہیں؟ تو ہمیں پتہ چلے گا ان کے قاعدوں سے۔ اگر حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو اور یہ والی علامت لگی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مد واجب متصل ہے، اس کو 4 حرکات پڑھیں۔ اگر حروف مدہ کے بعد تشدید ہے یا پھر حرف ساکن ہے اور یہ والی علامت لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس حرف کو 6 حرکات کھینچ کے لمبا کر کے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کون سی مدات ہیں، اور یہ والی مد سے تو ہمیں ویسے ہی پتہ چل جائے گا، حمزہ جو ہے وہ الگ کلمے میں ہوگا، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہم نے 4 حرکات ہی پڑھنا ہوگا، 2 حرکات بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے، ٹھیک۔ اگر 2 حرکات پڑھنا ہوتا ہے تو اس کے کچھ اور بھی رولز ہوتے ہیں جو پورے قرآن میں کچھ اسپیسیفک ورڈز پر اپلائی کرنے ہوتے ہیں، اس لیے ہم انشاءاللہ 4 حرکات کے مطابق پڑھیں گے۔ تو یہ سارا جو کہ ہم ریکیپ کر چکے ہیں، یہ ساری وہی باتیں ہیں، یہ سب آپ پہلے بھی کر لیا ہے ہم نے۔ ہم چلتے ہیں اپنے حروف کی پریکٹس کی طرف۔ تو آپ سب لوگ ہینڈ ریز کر لیجئے تاکہ میں آپ لوگ کو 1 بائی 1 جو ہے وہ انوائٹ کروں اور آپ لوگ یہاں پر پارٹیسپیٹ کریں، ٹھیک ہے۔ جی ارم آئیے، پہلا ورڈ دیکھیے۔ جی اولا عیسیٰ جی بیٹا بابا پاس جائیں گے۔ یہ کون سی مد ہو رہی ہے؟ جی میم، کون سی مد ہو رہی ہے یہ بتانا، سب سے پہلے آپ نے یہ بتانا ہے۔ میم یہ مد لازم، مد لازم کا قاعدہ بتائیے۔ میم مد لازم جو ہے وہ 2 طرح کی ہیں۔ اگر مد لازم مختلف طرح کی ہیں، اس کی مقدار 6 حرکات یا 3 الف کے برابر کھینچ کر لمبا کر کے پڑھتے ہیں، اور مد لازم 2 طرح کی ہیں۔ مد لازم کلمی مخفف، اگر کسی کلمے میں حروف مدہ کے بعد حرف ساکن ہو تو اسے مد لازم کلمی مخفف کہتے ہیں، اور اگر کسی کلمہ میں حروف مدہ کے بعد حروف پر تشدید ہو تو اسے مد لازم کلمی مسفل مثقل، کہتے ہیں۔ مخفف اور مثقل۔ آپ نے کہا مد لازم کب ہوتی ہے؟ حروف مدہ کے بعد یا تو تشدید ہو یا پھر جو ہے آپ نے ساکن حرف بولا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر تشدید ہے یا ساکن حرف ہے کہ آپ نے اس کو مد لازم بنایا ہے؟ نہیں نہیں، نو میم، یہ واجب ہے۔
ये मद वाजिब है। मुत्तसिल कैसे है, ये मुत्तसिल। कैसे मद पता चला? बाकी लोग प्लीज अभी माइक माइक को म्यूट रखिए। जी, कैसे पता चला कि ये मद वाजिब मुत्तसिल बनी है? जी मैम। आप अटेंटिव हैं क्लास में? जी जी मैं अटेंटिव हूँ मैं। इसमें था। बताइए कि कैसे पता चला कि ये मद वाजिब मुत्तसिल बनी है? मैम इससे पहले हरूफ मद्दा मैम मैं बताऊं? वेट, कौन कह रहा है मैं बताऊं? नाम बोलिए। टीचर मैम मैं शाजिया बताती हूँ। एक मिनट एक मिनट, शाजिया। हाँ जी बताइए, कैसे पता चला मद वाजिब मुत्तसिल? मैम क्योंकि इसमें एक ही कलमे में हमजा है हरूफ मद्दा के बाद। और ये जो खड़ी ज़बर है, ये हरूफ मद्दा के यानी अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, इसलिए जी हम कह रहे हैं कि ये मद्दा है। अलिफ मद्दा के बाद ये जो हमज़ा है एक ही कलीमे में जुड़ा हुआ है। तो बस सिंपल सा कायदा है जो हमने याद रखना है। अगर हमें कायदे नहीं आते तो हम लोग मद्दात को नहीं कर सकते, ना हम इनकी पहचान कर सकते हैं, ना हम इनकी मिकदारों को पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी हमने कवायद को रिकैप किया है, तो आप अपने माइंड में कायदों को ज़रूर याद रखें। ठीक है, हरूफ मद्दा के बाद अगर हमज़ा एक ही कलीमे में जुड़ा हुआ हो तो ये मद्द वाजिब मुत्तसिल होती है। जी शाजिया बताइए, इस मद को कितना लंबा करके पढ़ते हैं? मैम इसे 4 हरकत खींचेंगे हम। 4 हरकत पढ़ना वाजिब है। बारकल्लाहु फीक। वाजिब है। माइक म्यूट कर लीजिए। नेक्स्ट मारिया आप आए। जी उस्ताजा। जी ये कलिमा देखें। मलाइकतु। हम्म, उस्ताजा ये मद्दे वाजिब मुत्तसिल है। कैसे पता चला? उस्ताजा हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में है। बारकल्लाहु फीक। हरूफ मद्दा कहाँ है? और उस्ताजा जो लाम के ऊपर जो मद लगी हुई है। लाम के ऊपर जो खड़ी ज़बर है, खड़ी ज़बर किसके कायम मकाम है? हरूफ मद्दा के। सारे हरूफ मद्दा के कायम मकाम है या किसी एक? उस्ताजा ये सिर्फ जो खड़ी जबर होती है, उल्टा पेश और खड़ी जबर, ये हरूफ मद्दा के कायम मुकाम होती है। अलिफ मद्दा के। खड़ी खड़ी ज़बर किसके कायम मकाम है ये बता रही। उस्ताजा ये अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा के कायम मकाम है, शाबाश। ठीक है, खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा की तरह पढ़ी जाती है, अलिफ मद्दा के कायम मकाम है। तो यहाँ पर हमजा जुड़ा हुआ है इसलिए मद वाजिब मुत्तसिल होगी और इसको हम 4 हरकत खींच के पढ़ेंगे। चलिए पढ़ के बताइए, अदायगी करें। मलाइकतु। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। चलिए जी, जी अस्मत आंटी आप आए। जी ये वाला पढ़ो दोबारा। जी इसी को पढ़ लें। मलाइकतु। बारकल्लाहु फीक। अब अगला वाला वर्ड देखिए, यहाँ पे कौन सी मद हो रही है? मद्दे लाजिम ये मद्दे वाजिब हो रही है। मद्दे जायज। मद्दे जायज मुश्किल हो रही है। कलमी मुखफ़फ़ कन शायद। बात आप लोग खामोश रहे हैं। ठीक है, कायदा याद करें। कायदा क्या है इसका? आप सब लोग जो नोट्स आपने बनाए हुए हैं ना, आप सब लोगों ने वो नोट्स अपने सामने रखने हैं। ठीक है, मैं आपका टेस्ट नहीं ले रही, मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रही हूँ। ठीक है, एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिस आप सबके नोट्स आपके सामने खुले हुए होने चाहिए। आपको कुछ नहीं आ रहा, आप नोट्स से देख कर बताएं। बार बार जब आप ये देखेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है। हाँ जी। तो बताइए ये मद्दे कि ये मद्दे लाजम यानी कि कलमी मुखफ़फ़ है। इसका भी हमजा हमजा साथ इसके जुड़ा हुआ है और अलिफ जो है हरकत के कायम मकाम है। नहीं 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 नहीं, मद कहाँ पे लगी हुई है देखें तो? मद मद तो हमजा यहाँ के ऊपर। हमजा के हमजा, ऊपर। तो हमजा के ऊपर खड़ी जबर यानी हरूफे मद्दा के हाँ बाद क्या चीज है हाँ जिसका कलमा बन रहा है मद का? साकिन हर्फ है ये ना? हाँ जी साकिन हर्फ है।
लाम जो है हाँ जी, हरूफ मद्दा के बाद अगर साकिन हर्फ आ जाए तो कौन सी मद होती है? वो वो मद्दे कलमी मुखफ़फ़ इसको कहते हैं, कलमी मुखफ़फ़। मद्दे लाजिम कलमी मद मुखफ़फ़। हाँ इसको मद्दे कितने लाजम हरकत? मद मद्दे लाजम कलमी मुखफ़फ़ कहते हैं। बारकल्लाह। इसको इसको कितने हरकत? 6 काउंट इसको पढ़ते हैं, 6 हरकत काउंट पढ़ना है। 5-6 काउंट जो पढ़ आप सकते कह रहे हैं। थे ना, जो आप ये हमजा को देख रहे हैं, ये हमजा हाँ को जी, नहीं देख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमजा पर मद नहीं हो रही कोई, इस पर मद की लामत भी नहीं लगी हुई, नहीं ना लगी हाँ हुई, जी, नहीं। इसलिए हम इस हमजा को नहीं देखेंगे। इस हमजा को जो इसके ऊपर इलामत, जो इसके ऊपर हरकत लगी है, बस उतना ही पढ़ेंगे। क्या हरकत है, इसको कितना पढ़ेंगे हम? हमजा के ऊपर जो लामत है या मद्दा के ऊपर जो है? हमजा के ऊपर यानी कि एक अलिफ, एक यानी कि अलमद्दा के बराबर यानी कि है 2 हरकत, हरकत। हाँ 2 जी। हरकत। हाँ जी। हाँ, इस और हमजा को लाम, हम बस 2 हरकत ही पढ़ेंगे। मद जो हाँ असल में हो रही है वो यहाँ पर, ये देखिए ये मद हो रही है, ठीक है। हाँ जी, हाँ चलिए जी, हाँ जी। आप जरा इसको पढ़ के दिखाइए। आ आलाना, आ आलाना। नहीं 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 नहीं, ये देखिए आपने करना यूं है, ठीक है। ये हाँ आपने जी। 6 हरकत पहले पढ़े, इस वर्ड को पढ़े 6 हरकत। आ लाम को मिलाए ना, लाम साकिन है ना। आ अला ला क्यों कह रही हैं? ला पर तो लाम पर जबर है ही नहीं। लाम साकिन है, आल है ना ये वर्ड। चले 6 हरकत भी लंबा ना करें, सिंपल पढ़ें। पहले मैंने उर्दू में पढ़ें कि मैंने इसको क्या लिखा है, ये मैंने क्या लिखा है, ये क्या होता आ है। आ आला उर्दू में बताइए क्या लिखा हुआ है। आल, लाम आल। आल, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आल। आल बस आपने आल। इसको आल ही पढ़ना है। बस क्या करना है कि ठीक है। हमजा को 6 हरकत लंबा करें। आल, आल पढ़े। आल ठीक पढ़ लिया, आ यहाँ तक तुमने जी, पढ़ लिया। आल लंबा कर लिया। अब हाँ इस जी। हमजा को पढ़े, इसको 2 हरकत पढ़े। आ अब इसको 1 हरकत नून को पढ़े। नो आ नून ना, नून ना, जबर ना, ठीक है। नून जबर ना। हाँ जी। क्या करेंगे, आ ये वाला आल, आना, आ आल। आल आल आना। हाँ जी, ये वर्ड है। लाम पर जबर नहीं देनी हमने, आला नहीं मुझे करना। रात मुझे रात को इसकी समझ ही नहीं आई थी कि ये आल पढ़ना है। ये आल पढ़ना है, लाम साकिन है ना, इस वजह से। ठीक है। और लंबा किसको करना है, हमजा को, क्योंकि यहाँ हमजा पर को। हम यहाँ पर अलिफ मद्दा बन रहा है, तो हरूफे हाँ मद्दा को ही लंबा करना होता है। मद हमजा पे ही लगी हुई है। हमजा को 6 हरकत लंबा करना है, और पढ़ना हमने जी, आल ही है, बस लंबा करते हुए पढ़ना है। ठीक। आल, आना। अब पढ़िए। आल आल आना। आ को और लंबा करें, 6 हरकत, यानी अपनी फिंगर्स को खोलें, 1 2 3 4 5 6, जब तक 6। आल आना। हाँ जी, इस तरह से, ठीक है। पूरी हाँ काउंट्स जी। करनी, 1 2 3 4 5 6। आपने अपनी फिंगर्स खोलते जाना है, उतनी देर तक पढ़ते जाना है, ठीक है। जब ठीक। 6 फिंगर्स खुल जाए, तब आपने उसको स्टॉप करना है। आना, फिर पढ़िए। आल 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 आना। आ को आल आल कौन? आल आ आल को दोनों पहले को मिला के कौन? अकेला, अकेला आ पहले लंबा करें, 6 हरकत बाद आ में करें। आ आला आना। आल आल आना। हाँ जी, बस ये आ को लंबा करते हुए आल करना है। चलिए, बारकल्लाहु फीक, इसकी ठीक। आप प्रैक्टिस करिएगा। इस लेक्चर को दोबारा भी सुनिएगा कैसे पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। तो फिर ठीक इसकी है। दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। ये एक ही कलिमा है जिसके ऊपर मद लाजिम कलमी मुखफ़फ़ हुई है पूरे कुरान में। अच्छा जी, ये 2 जगहों पर आया है वैसे।
اچھا نیکسٹ ہمارے ساتھ کون ہے؟ غزالہ آپ آئیے. جی میم، جی یہ غزالہ یہ دیکھیے کون سی مد ہے، کیسے بتائیں گے؟ مد واجب. اللہ اکبر. مد واجب کا قاعدہ بتائیے. اسی کلمے میں آتا ہے. کیا آتا ہے اسی کلمے میں؟ سوری میم، یہ تو کل جو پڑھی تھی وہ ہے مسقل. مسقل اور مخفف بے شک نہ بولیں، مد لازم بول دیں آپ لوگ. مد ٹھیک ہے، لازم مسقل، کیونکہ اس میں شد آیا ہے آگے. بارک اللہ فیک. دیکھیں آپ نے خود ہی اس کی اپنی جو تھی غلطی خود ہی پکڑ لی کہ یہ مد واجب نہیں ہو رہی. کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ شد آ رہی ہے، حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے پہلے دیکھا کریں قاعدہ بن کیا رہا ہے، دین آنسر کریں کہ ہاں یہ والی مد ہو رہی ہے. ادروائز ایسے ہی نہیں کہ مد واجب ہو رہی ہے، مد واجب نہیں ہو رہی. کیسے پتا چلا کہ یہ مد لازم کلمی مثقل ہے؟ شد ہے نا مد مد کے بعد، تو اس وجہ سے پتہ چلا. شاباش. حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آئے تو مد لازم کلمی مثقل ہے. چلیے اب اس کو پڑھ کے بتائیں. صوافا. بارک اللہ فیک. اچھا ادا کر لیا. صواف. چلیے الحمدللہ. نیکسٹ حاجرہ آنٹی آپ آئیں. جی دیکھیے کون سی جی مد ہو رہی ہے؟ یہاں پہ جو ہے مد لازم کلمی مسقل ہو رہی ہے، کیونکہ مد کے بعد والی حروف پہ تشدید ہے. بارک اللہ اور فیک. چلیے پڑھ کے بتائیے. اس کو ہم چھ حرکات لمبی پڑھیں گے. شاباش. پڑھیے. جی غیر مضارین. شاباش. مد نہیں کرنے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو جی دال سوری دال پر آپ نے مدا ہاں جی مدا جی مضا ضارین. دن رن. ری نہیں ہے ری. غین کو موٹا رکھیں اور جی موٹا رکھیں. غیر مضارین. دن غیر مضارین. دن. ٹھیک ہے، اس کو جی پکا کرنا ہوگا. چلیے نیکسٹ ہمارے ساتھ ناہید آنٹی آپ آئیں. جی کون اب دیکھیے یہاں پر کون سی مد ہے؟ یہاں پہ یہ مد لازم کلمی مخفف. مخفف تو ایک ہی ہے، ساکن پر ہوتی ہے. یہ مثقل ہے. ٹھیک ہے، مسقل. جی چلیے مسقل. ادا کر کے بتائیں. ولا جان ولا جان. نون کا غنہ بھی کریں گے. بارک اللہ فیک. چلیے الحمدللہ اچھی آپ لوگ کی جو ہے وہ پرننسیشن ہو رہی ہے. پہچان آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کو ادائیگی آ گئی قاعدے کی. ٹھیک ہے. اچھا جی بدر النساء آنٹی آپ آ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دیکھیں جو میں نے صرف سرکل کیا اس کو دیکھیں کون سی مد بن رہی ہے. یہ مد جائز ہے. الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. نہیں جی مد جائز منفصل. بارک اللہ فیک. کیسے پتا چلا آپ کو؟ اس کو کہ لام کے اوپر مد ہے اور الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے. الف کے نیچے وہ ہے کسرہ ہے تو حمزہ ہے کہنا ہے. تو حمزہ دوسرے کلیمے میں ہے، اس سے حمزہ پہچانے آپ. ہاں جی بارک اللہ فیک. اب ہم اس کو کتنا پڑھیں گے؟ اس کو 4 کاؤنٹ بھی پڑھنا جائز ہے. اگر ہم 2 کاؤنٹ بھی پڑھ سکتے ہیں.
चलिए पढ़िए ज़रा। इलाह। नहीं, ला, हम 4 हरकत पढ़ेंगे ना, मैं बार बार आपको डिफाइन कर रही हूँ कि हम 4 हरकत ही पढ़ेंगे। सारे पढ़िए। हरकत पढ़ेंगे। ला इलाहा। बारकल्लाहु फीक। अच्छा, अगली भी बता दें साथ ही। जी जी। इल्ला इल्ला, इसमें ये भी मदे जायज मुतस्सिल वही है, मुनफसिल। मुनफसिल, बारकल्लाहु फीक। इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, जी ये कलीमा कितना इम्पोर्टेंट है ना। चलें पढ़ के जी। दिखा दें पूरा का पूरा। इल्ला अंता। शाबाश। दोबारा पढ़ें इसको पूरे को। अच्छा, आप यहाँ पे आपने क्या किया है भला, नून साकिन आ गया, ये भी हमारा कायदा हमने पढ़ा है ना। जी। आपने क्या किया यहाँ है? सगी है। हम्म, इक्फा किया, बारकल्लाहु फीक। देखें, सारे के सारे रूल्स जब आप अदा करते हैं आपकी अदायगी बेहतरीन होती है, कोई गलती ही नहीं होती। चलें इस पूरे कलीमे को एक दफ़ा अदा कर लें। ला इलाहा इल्ला अंता। बारकल्लाहु फीक। हाँ, थोड़ा सा लंबा हो गया था, इसको लंबा नहीं करना है, सिर्फ एक हरकत पढ़ना है। ठीक है, ला इलाहा इल्ला अंता, इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। और हम क्या करते होते हैं, हम कहते हैं ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ऐसे पढ़ते हैं ना। ऐसे बिल्कुल जी नहीं पढ़ना है, हर हर्फ का हक अदा करें। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, ये पूरे सारे हकूक उसके अदा करें। बारकल्लाहु फीक। माइक म्यूट कर लीजिए अपना। अच्छा, अब यहाँ पर एक कलीमा ये आ गया है हा उलाई। आप यहाँ पर देखिए कि इस पर जो मद हो रही है, ये जो मद हो रही है, ये कौन सी साइन है, मैंने आपको बताया शुरू में। मध्य जायज मुनफसिल। हाँ जी, मद जायज़ मुनफसिल का साइन है ना ये वाला। इससे हमें पता चल गया कि ये जो हो रही है ना हाँ पर, ये मद जायज़ मुनफसिल है। और यहाँ पर क्या हो रही है, ये वाली मद। मैम ये मध्य वाजिब मुतसिल। मैम मध्य मैम वाजिब मुनफसिल मुनफसिल वो है, ये मुनफसिल ही है। पहली मध्य जायज मुतसिल मैम। मुनफसिल है, दूसरी मध्य वाजिब मुतसिल है। देखें, आगे मुनफसिल ऐसे माहौल ख़राब हो जाता है। ठीक है, मद्दे जाय यहाँ पर देखिए, मैंने आपको मद से पहचान करना भी बताई थी कि मद्दे जायज़ मुनफसिल की मद जो होती है वो ऐसे लेयर की शक्ल में होती है, और मद वाजिब मुत्तसिल की जो होती है वो कर्व की शक्ल में होती है। ठीक है, और मद जायज़ की भी ऐसी होती है, और मद लाजिम की सॉरी ऐसे ही होती है। ठीक है, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे, ये हमजा से और ये तशदीद से, ये वाले साकिन हर्फ से कि कौन सी मद है। अच्छा, अब यहाँ पर के यहाँ पर हो रही है, एक जगह पर हो रही है मद जायज़ मुनफसिल और दूसरी जगह पर हो रही है मद वाजिब मुत्तसिल। ठीक है, अब हमने इसको, ये वाली जो मद है इसको हम मद जायज़ मुनफसिल क्यों कह रहे हैं, हालांकि हमें तो ये हमज़ा साथ जुड़ा हुआ लग रहा है, एक ही कलीमे का हिस्सा लग रहा है, तो हम इसको मद जायज़ मुनफसिल क्यों कह रहे हैं, ये आपसे कोई सवाल कर सकता है। ठीक है, ये मद जायज़ मुनफसिल इसलिए है कि ये जो हा है ना, इसको हाय तंबीह कहते हैं। ठीक है, ये हा अलग होता है, लेकिन यहाँ पर लिखने की सूरत में इसको इकट्ठा लिखा गया है उलाई के साथ। उलाई अलग वर्ड है, हा अलग है कलीमा, हा अलग वर्ड है, उलाई अलग कलीमा है। ठीक है, तो ये अलग कलीमे में ही हमजा है, लेकिन लिखने में इकट्ठा लिख दिया गया है। तो ये एक ऐसा स्पेसिफिक कलीमा है कि जिसमें आपको इस तरह से ये इकट्ठा लिखा हुआ नज़र ज़रूर आएगा, लेकिन आपने क्या करना है, सिंपल वे है, आपके पास इंडिया और पाकिस्तान के मुसहफ़ मौजूद हैं, तो आप इसकी मद से पहचान लेंगी कि ये तो मद जायज़ मुनफसिल है और ये मद वाजिब मुत्तसिल है। इसके अलावा भी आप इसको याद रखें कि हा उलाई में हा पर जो मद हो रही है वो मद जायज़ मुनफसिल ही होती है। क्यों? क्योंकि ये हाय तंबीह होती है, ये हा अलग होती है और उलाई अलग कलीमा होता है, लेकिन लिखने के तौर पर यहाँ पर इकट्ठा लिखा हुआ है। ठीक है, इस बात की समझ आ गई है आपको। हमने जो, हाँ जी, मैडम हाँ पे खड़ी जबर है, इससे भी इसकी पहचान हो सकती है, यानी कि एक अलिफ के बराबर है तो इससे समझे कि हाँ, हाँ पे माद है और सात अलिफ है। हाँ, हरूफ मद्दा तो नहीं, ये अलिफ मद्दा है यहाँ पे। देखिए, हरूफ यूं मद्दा
मद्दा तो सेम ही है ना, हरूफ मद्दा के बाद ही सारी मद्दात हो रही हैं, चाहे वो मद्दे लाजिम है, मद्दे वाजिब है, मद्दे जायज़ है, होनी तो हरूफ मद्दा के बाद ही है, चाहे खड़ी हरकत ही क्यों ना आ जाए। बात ये हो रही है कि ये एक कलिमे में मौजूद है, जबकि मद्दे जायज़ का कायदा है कि अलग कलिमे में होना चाहिए हमजा। तो वो बता रही हूँ कि ये अलग कलिमा ही है, लिखने में ये साथ, ठीक है, ये है अलग कलिमा, ठीक, हाय तमरीन कहते हैं इसको, उलाई अलग कलिमा। देखिए आप में बोलेंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, जब मैं आप लोगों के माइक म्यूट कर देती हूँ फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद ही बोले जा रही हूँ। चलें आप लोग पार्टिसिपेट कर लें, तो जब मैं पार्टिसिपेट के लिए खोल देती हूँ फिर आप लोग माइक ओपन करके मेरी बात सुनने के बजाय पढ़ रहे होते हैं खुद ब खुद, ये क्लास का सिनेरियो नहीं होता फिर, ठीक है, आप सब लोग समझदार हैं, थोड़ा सा काम लिया करें हिम्मत के साथ, हौसले के साथ। अच्छा जी, इस बात की बस बताएं कि समझ आ गई है कि ये हाँ अलग है और उलाई अलग है, और ये जो है मदद जायज़ मुनफसिल क्यों है, क्योंकि ये हाँ अलग कलिमा होता है, अलग वर्ड होता है, इस वजह से यहाँ पर ये कायदा वही है कि हमज़ा जो है वो अलग कलिमे में हो, लेकिन लिखने में ये साथ आ गया है, तो यहाँ पर मद जायज़ मुनफसिल हो रही है यहाँ पर, और उलाई यहाँ पर मद वाजिब मुत्तसिल हो रही है। बहरहाल हमने तो पढ़ने का तरीका मद जायज़ का भी 4 हरकत ही लिया हुआ है, चूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 हरकत ही इसको लंबा करके पढ़ेंगे दोनों को, ठीक है, क्लियर हो गई बात? जी बस। जी मैम। चलिए उस्ताजा जी, उस्ताजा ये जो आल आना पे और जो हा उलाई में जो मद के ऊपर जो छोटी सी अलिफ लिखी हुई ये क्यों लिखी होती है, खड़ी जबर? खड़ी ज़बर किसके कायम मकाम होती है? आप उस्ताजा अलिफ मद्दा के। तो अलिफ मद्दा बन रहा है इसलिए लिखी हुई है, आप ये हरूफ मद्दा बन रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तानी और इंडिया के मुसहफ़ में खड़ी हरकत होती हैं, जो अरबी मुसहफ़ हैं वहाँ पर खड़ी हरकत नहीं होती, बल्कि ज़बर के साथ उस्ताजा छोटी अलिफ। फिर वाला जानो यहाँ पे क्यों नहीं लिखी हुई? मैंने इसकी डिटेल पिछले लेक्चर्स में सारी बताई हुई है, अरबी मुसहफ़ भी ला के दिखाया हुआ है कि कैसे कैसे वहाँ पर हो रहा है, ठीक है, ये लिखने का तरीका है, कुरान हमने नहीं लिखा हुआ, ठीक है। ये जो ये कलिमा है ये आप अरबी मुसहफ़ में देखेंगे तो यूं लिखा हुआ नज़र आएगा आपको, यूं लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है। आपने पहचान करनी है, आपको पढ़ने से गर्ज है, आप कुरान नहीं लिख रहे हैं, क्लियर? जी उस्ताजा। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट। मैंने किसको कहा था, नहीं अभी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, इसको पढ़ के बताएं समीना। ऑफ जी, कौन से बच्चे? इसको पढ़ के बताएं। आवाज ही नहीं आ रही, आसिया आप पढ़िए। उलाई। बारकल्लाहु फीक। चलिए जी, शाजिया आप आए। मैम हाँ जी, देखें यहाँ पर कौन सी मद हो रही है। मैम यहाँ मध्य मुत्सिल। जो लोग गलत आंसर दे रहे हैं ना, गलत जवाब दे रहे हैं, उनसे शो हो रहा है कि तैयारी नहीं है। सॉरी मैम, नो 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 मैम, वो मध्य मुनफसिल है मैम, वो थोड़ा सा जरा वर्डिंग इनकी थोड़ी टफ है ना, मुत्तसिल और मुनफसिल, लेकिन मुझे इनकी डेफिनेशन है कि एक कलमे में अगर हमजा होगा तो वो मध्य मुत्तसिल होगा, और अगर दूसरे कलमे में हमजा होगा हरूफ मद्दा के बाद तो वो मुनफसिल होगा। हाँ जी, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी आपने कहा कि ये मद जायज़ मुनफसिल है, तो कितने हरकत पढ़ेंगे? मैम 4 हरकत, पढ़ लेकिन के 2 भी पढ़ सकते हैं, कुछ गलत कर दिया। हाँ जी, बिमा उनजिला।
ज़ीला, ज़ा को सख्ती से पढ़ते हैं सॉरी इसलिए। उनजिला, हाँ जी उनजिला। हाँ जी, मजबूती से सीटी लाते हैं। अच्छा, आपने नून साकिन पर कौन सा ये जो है ना कायदा किया है? मैम इकफा। इक्फा किया, बारकल्लाहु फीक। चलिए, सना आप आए। नुसरत आप आ जाएं। क़ालू आमन्ना। आपने कौन सी मत की माशाअल्लाह। मैम यहाँ पर जो है वो मद्दे मुनफसिल जायज हो रही है। शाबाश, कैसे पता चला आपको? मैम उस अलिफ मद्दा के बाद जो है मैम हमजा आ रहा है दूसरे कलमे में। अलिफ मद्दा है, पहले देखें। मैम मैम यहाँ पर कालू को अगर हम देखेंगे तो मैम फिर तो वो है मैम वाओ मद्दा। वाओ मद्दा ही है। नहीं लीन मैम मद्दे लीन के बाद जो है वो हमजा आ रहा है। अल्लाह अकबर, पहले सही जवाब दिया और बाद में आप घूम गई हैं। लीन कहाँ से आ गया? लीन में तो जबर होती है। सॉरी मैम मैम वाओ मद्दा के बाद में हमजा आ रहा है तो इस वजह से मैम ये मद्दे मुनफसिल जायज है और इसको 4 हरकत के साथ पढ़ेंगे और 2 हरकत के साथ पढ़ना भी जायज है। हाँ जी, और हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलिमे में है, अलिफ की जी भी मैम। शक्ल है, तो यहाँ पर जी मद जी मैम जी एक बात यहाँ, मैम मैम ये इसको जो एक क्वेश्चन पूछूं? मैम एक मिनट मुझसे पहले वो कर दीजिएगा। मैम ये जो बीच में मद है इसको हम नहीं लेंगे। पढ़ के अब बताइए। आपने ये वाओ मद्दा लिया है हमने पढ़ा तो उसको है ना कॉलू तो मैम ये वाओ पे ही बनती मद जो है। आपने खुद ही को लू ही को ही लंबा किया है, वाओ को ही लंबा किया है ही वाओ पर। हाँ जी जी मैम। हाँ जी, ये जी वाओ पर ही। और ये बात हमने ये बात भी पहले कर ली हुई है, ये बात भी डिफाइन की थी कि ये जो ये कालू और इस तरह से जमा के सिगे होते हैं, इनके साथ अलिफ लिखा तो होता है लेकिन ये पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, लिखने के तरीके में ये मैम आया हुआ है। ठीक है। जी मैम बेसिकली ये वाओ के ऊपर ही है वाओ मद्दा के ऊपर है ये हाँ मद जी, जो है। ही लंबे जी होंगे। मैम इसको मैं दोबारा पढ़ूं। जी पढ़ लें। कालू आमन्ना। बारकल्लाहु फीक। मार्कर को यूज़ मत कीजिए। ठीक है, बहुत अच्छा पढ़ा है आपने। बेसिकली हम हरूफ मद्दा को ही मज़ीद लंबा करते हैं। ठीक है, हरूफ मद्दा की अपनी मकदार तो 2 रकात होती है, लेकिन हरूफ मद्दा ही को हम मज़ीद लंबा करते हैं कायदे के मुताबिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारे साथ कौन ऐसा है जिसने नहीं लिया? मैम मैंने बाजी मुझसे नहीं हुआ। साकिन के बाद जो मद आ रही है उसे मद्दे मुनफसिल कहते हैं बाजी। साकिन के बाद जी बाजी, जो या साकिन है हमने हरूफ उसके मद्दा बाद। या जी साकिन नहीं बाजी। देख, हम पूरी मद देख रहे हैं, हरूफ मद्दा या मद्दा देख रहे हैं, हम या साकिन नहीं देख रहे अकेला। जी या बाजी मेरा सवाल मुतसिल और मद्दे मुनफसिल में जो फर्क आप बता रही हैं बाजी उसमें थोड़ा मुझे कंफ्यूज हो रहा है बाजी। जो आप ऊपर जो मद है कव शक्ल में वो मद्दे मुनफसिल है ना बाजी। साकिन के बाद जो भी मद आए वो मद्दे मुनफसिल होगी ना बाजी। अल्लाह अकबर, नहीं मैम मैं ऐसा। बताऊं? वेट करें, 1 मिनट ठहर जाए। डियर सिस्टर जो भी हैं, किसने क्वेश्चन किया है, आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा या प्रैक्टिस नहीं की आपने, आपको वो क्लियर नहीं हुआ है। साकिन की तो बात ही नहीं है, बात है हरूफ मद्दा की, चाहे वो खड़ी हरकत की शक्ल में हो, चाहे वो हरूफ मद्दा इटसेल्फ हो। ठीक है, जी हरूफ बाजी। मद्दा कब बनते हैं? खाली अलिफ से पहले ज़बर हो, अलिफ मद्दा है, या साकिन से पहले ज़ेर हो, या मद्दा है, वाव साकिन से पहले पेश हो, वाव मद्दा है। ये बात हो रही है जी हरूफ बाजी। मद्दा की।
اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے ڈیفائن کر دیا کھڑی حرکات کو کہ اگر بالفرض کھڑی حرکات ہوں تو کھڑی حرکات، کھڑی زبر ہے الف مدہ قائم مقام، کھڑی زیر ہے یا مدہ قائم مقام، الٹا پیش ہے وہ مدہ قائم مقام، تو یہ والی کھڑی حرکات بھی ہو سکتی ہیں اور یہ حروف مدہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کھڑی حرکات کے بعد اگر کوئی حمزہ آ رہا ہے تو وہ مد واجب متصل ہو، اور اگر حروف مدہ کے بعد کوئی حمزہ آ رہا ہے تو وہ مد جائز منفصل۔ ایسا تو قاعدہ ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے پڑھا کہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں، ان کو ایک ہی کنسیڈر کریں، چاہے یہ ہوں چاہے وہ ہوں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے بعد حمزہ ایک کلمے میں ہو تو مد واجب متصل ہے، حمزہ الگ کلمے میں ہو تو مد جائز منفصل ہے۔ لیکچر کو دھیان سے دیکھا کیجئے اور پریکٹس کر کے آیا کریں، دین آپ کی ساری کنفیوژنس دور ہو جائیں گی۔ اب دوبارہ سے میں نے ادھر اتنا ٹائم لگایا آپ لوگوں کو پھر سے سمجھانے میں، تو یہ باجی ٹائم ہم نے صبح سے کلاس لے رہے ہیں اسرا باجی کی کلاس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔ چلیے نیکسٹ آئیے، جس نے ابھی تک، فوزیہ آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ جی باجی میں ابھی رہتی ہوں۔ چلیے پڑھیے۔ بنی آدم یہی مدہ کا قاعدہ ہوگا۔ ایک منٹ، میں نے فوزیہ کو بلایا ہے، کون پڑھ رہا ہے؟ ساتھ کوئی اور بھی آ گئی ہے۔ اچھا میم، یہاں پہ یا مدہ کے ساتھ اگلے کلمہ کے شروع میں آ رہا ہے حمزہ، تو یہ مد جائز منفصل بنے گا۔ شاباش، کتنے حرکات پڑھیں گے ہم؟ اس کو 4 حرکات یا 2، ویسے ہم ادھر 4 پڑھیں گے۔ 4 پڑھیں گے، ٹھیک ہے، پڑھ کے بتا دیں۔ بنی آدم۔ شاباش، بارک اللہ فیک۔ چلیے جی، اب یہاں پر ایک اور کلمہ ایسا ہے کہ جہاں پر مجھے آپ لوگوں کو بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ دھیان سے سنیے۔ جیسے ہا اولائی تھا نا، اور میں نے کہا تھا کہ ہا الگ کلمہ ہوتا ہے اور اولائی الگ کلمہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے یہاں پر جو ہے ہا پر مد جائز منفصل ہوتی ہے، الگ کلمے والا ہی رول ہے۔ اسی طرح یہ جو یا ہے نا، یا الگ کلمہ ہے، آدم الگ کلمہ ہے، لیکن لکھنے کی صورت میں یہاں پر اکٹھا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم اس کو بالفرض یوں بھی لکھ دیں الف مدہ سیدھا بنا کر، اور یہاں پر ہم آدم ایسے لکھ دیں، تو بھی تو یہ یا آدم ہی رہے گا نا، دیکھیں یا آدم، یہ ایسا ہی رہا۔ اور اگر اس کو کھڑی زبر کی شکل بنا کر یہاں پر ملا کے لکھ دیا گیا ہے، تب بھی وہ یا آدم ہی رہا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو یا ہے، یا جو ہوتا ہے نا کسی کو بلانے مخاطب کرنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے یا آدم اے آدم، ٹھیک ہے؟ یا اللہ اے اللہ، ٹھیک ہے؟ یہ اس طرح سے یا جو ہوتا ہے نا، یہ کسی کو مخاطب کرنے، اس کا مطلب ہے کہ یا الگ ہے اور آدم کا نام الگ ہے، تو ہمارا قاعدہ وہیں کا وہیں ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ الگ کلمے میں ہو تو مد جائز منفصل ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ اس کے سائن سے بھی پہچان سکتے ہیں کہ یہ مد جائز منفصل ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح بھی آپ کو پتہ چل سکتا ہے۔ کلیئر ہو گئی ہے بات یہ والی بھی؟ جی میم۔ میم کون اصل میں بھی حروف مدی کے اوپر جو جی کون کہہ رہا تھا کہ میں نے ابھی تک پارٹیسپیٹ نہیں کیا؟ میم میں نے ابھی تک، آپ نے میرا رہ جی گیا۔ باجی میں ابھی رہتی ہوں۔ میں کا نام ہوتا ہے، اپنا باجی نام میں سمینا بہرین۔ سمینا سمینا کا کا نام کیا تھا؟ میم سائرہ زاہد، میں نے بھی ابھی نہیں پڑھا۔ مہرین۔ ویٹ مہرین آ جائے، جی پڑھیں اس میم۔ کو۔ یا آدم۔ بارک اللہ فیک۔ چلیے جی، ملائکہ تو میرا خیال ہم پڑھ چکے ہیں، ملائکہ تو بھی پڑھ چکے ہیں، اعلان بھی پڑھ چکے ہیں، یہ پڑھتے ہیں انشاءاللہ ابھی۔ جی کس نے کہا تھا؟ سمینا نے۔ سمینا آ جی جائیں، باجی جی باجی پڑھیں سمینا۔ جی باجی باجی اس میں مد لازم ہو رہی ہے کیونکہ الف مدہ کے بعد شاد ہے میم پہ۔ شاباش، مد لازم آ کلمی پڑھیے۔ جی مینا آ کو پورا 6 حرکات لمبا کرنا ہے آپ نے، 6 جی باجی انگلیاں کھولنی۔ جی باجی بارک
आमीन। हाँ जी, मीन को बस 2 हरकत ही रखें क्योंकि ये याय मद्दा है ना, यहाँ जी पर जाए या बजा साकिन याय मद्दा है, बस 2 हरकत, ज्यादा नहीं लंबा कर रहे हैं इसको फिलहाल। जी बस ठीक है, तो अब यहाँ पर एक चीज को नोट करें कि ये जो आमीन आपने कितना लंबा करके पढ़ा है। ठीक है, तो जो नमाजी होते हैं, जब वो मुक्तदी होते हैं, वो इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ रहे होते हैं, सूरह जी अल फातिहा कंप्लीट होती है, तो वो कहते हैं, वो आमीन कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग सीधा कहते हैं आमीन यूं करके। ठीक है, और कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं आमीन, यानी अब यहाँ पर मतलब वो साकिन कर दें अगर, तो पढ़ेंगे आमीन, ऐसे पढ़ते हैं ना, लंबा सा करके जी पढ़ते बजा हैं। तो आज जी आपको पता चला कि वो क्यों लंबा करके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ जी पर बस मद है, मद्दे लाजिम हो लाजिम रही हो रही है। जी ठीक है, बजा ये वो लंबा करके पढ़ते हैं। अदरवाइज कोई ऐसी खास वजह नहीं है कि पता नहीं वो क्यों इतना बड़ा ऊंचा सा लंबा सा करके पढ़ते हैं। यहाँ पर कायदा हो रहा होता है, वो कायदे को अप्लाई कर रहे होते हैं। 6 हरकत इसको लंबा करके मीम पर 2 हरकत का गुन्ना करते हैं, और फिर जब यहाँ पर नून को साकिन करते हैं, मद आरिज यानी आरजी सुकून लगाकर जब साकिन करते हैं, तो हमने कहा था कि हरूफ मद्दा के बाद अगर किसी हर्फ को साकिन करना हो तो हम 2 हरकत, 4 हरकत, 6 हरकत करके वक्फ कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर जी मीन पर भी वो लंबा कर जाते हैं, इस कायदे को अप्लाई करते हैं, ये जो 2 4 6 वाला कायदा है। ठीक है, तो वो कैसे कर जी रहे बजा होते हैं, करते हैं आमीन, ऐसे ही करते हैं। ठीक है, जी बजी ऐसे ये चीज़ है। इसके बारे में पता नहीं क्या क्या बातें और गलत कॉन्सेप्ट जो हैं वो बने हुए हैं कि पता नहीं क्यों करते हैं। तो बहरहाल ये इसकी ये वजह है। अच्छा, ये सारे कलिमात हम कल की मश्क में भी देख चुके हैं और आज भी हमारे गुजर चुके हैं, इसलिए ये सारे कलिमात हम दोबारा से रिपीट नहीं करते हैं, ये देखते हैं आज ये अपने कलिमात को। हाँ जी, यहाँ पर सायरा जाहिद आप कह रही थी, मैंने पार्टिसिपेट नहीं किया, आ जाएं। जी मैम, ये मैम हो रहा है मद्दे वाजिब मुत्तसिल, क्योंकि इसका देखिए मद के निशान से मैं पहचान रही हूँ, उसके अलावा ये हमजा इसके साथ में हैगा। अदाउन। शाबाश, बारकल्लाहु फीक। देखा, सारी पहचान आपने जो है वो टिप्स को नोट किया और उसको अप्लाई किया, तो आपने आसानी से पहचान लिया कि ये कौन सी मद हो रही है। ठीक है, चलिए जी, आई थिंक सो कि हमारा जो है वो कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं, हमारा टाइम भी मुकम्मल हो चुका है, और इन सब में आप लोगों को खुद ही नज़र आ रहा है कि हमज़ा एक कलीमे में जुड़ा हुआ है, और ये सारी ये वाली जो हैं जिनको मैं सर्कल कर रही हूँ, ये मद्दे वाजिब मुत्तसिल हैं। ठीक है, ये सब के सब यहाँ तक ये मद्दे वाजिब मुत्तसिल हैं जिनको मैंने ब्लू से सर्कल किया है। बाकी रही बात ये वाली या कलीमा, जो मैं या जो हर्फ है, जो मैंने आपको बताया कि जब या किसी कलीमे के साथ जुड़ता है तो वो अलग ही कलीमा होता है, लेकिन वो जुड़ने में, लिखने में ऐसे आ गया होता है। आप इसकी मद के साइन से भी पहचान सकते हैं कि मद्दे वाजिब मद्दे जायज़ मुनफसिल है, लेकिन पढ़ना तो हमने 4 हरकत ही, पढ़ने में तो कोई चेंज नहीं आएगी। ठीक है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब का हामी और नासिर हो। आप सब ने अब कुरान में इसी तरह बहुत सारी मिसालें यहाँ पर मौजूद हैं कुरान में, आपने अब देखना है, एनालिसिस करना है कहाँ पर कौन सी मद हो रही है। और इंडिया और पाकिस्तान के मसाहिफ में तो पहचानना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, आप लोग अलामतों से पहचान सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ अलामतों पर नहीं रहना है बल्कि कायदों को भी नोट करना है। बार बार अपनी नोटबुक पर कायदा देखें, कौन सा कायदा हो रहा है, उसके मुताबिक एप्लीकेट करें, ताकि अरबी मुसहफ आपको पढ़ना पड़े तब आप कायदे के मुताबिक अप्लाई करें कि आपने 4 हरकत पढ़ना है या 6 हरकत पढ़ना है। ठीक है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सब के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे और हमारे लिए कुरान को बेहतरीन अंदाज में पढ़ना और पढ़ाना आसान करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सगीरा। आमीन या रब्बल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।